You and I with Rashmi Shetty is a human library audio podcast bringing in stories of people you and I can draw inspiration from. Welcome to the third season of this amazing story listening journey. Ordinary folks, extraordinary lives, their uniqueness and individuality, making them interesting to talk to and to listen to. Each one of them completely connected to the voice in me and with motivational stories of moving beyond themselves to make a difference in the world. A reaffirmation of the fact open your eyes wider. The world is far more beautiful when we acknowledge the presence of both you and I. Our guest today is Mr. Nand Kishore Chaudhary, a globally acclaimed social entrepreneur and the founder of Jaipur Rugs, one of India's largest manufacturers of hand-knotted rugs and is often referred to as the Gandhi of the carpet industry. With just 2 looms and 9 artisans in 1978, his journey of 4 decades stands at Jaipur Rugs today, becoming a global social enterprise, exporting to over 60 countries while providing sustainable livelihood to 40,000 artisans in 600 remote villages across 5 states in India, out of which 80% of them are women. Management guru C.K. Prahlad featured his revolutionary business philosophy in his globally acclaimed book, The Fortune at the Bottom of the Pyramid. Mr. Chaudhary has also been called the father of modern social enterprises by Professor Jagdish N. Seth from Emory University, USA. Professor Seth said Jaipur Rugs has become a role model that business can serve society and at the same time can be a capitalistic institution. In 2019, Raj Sisodia featured Jaipur Rugs and Mr. N.K. Chaudhary in his book, The Healing Organization for the Power of Innocence. The book highly celebrated Mr. N.K. Chaudhary's steps towards healing the customers and transforming the society with love. He has won awards including ENY Entrepreneur of the Year Award, CNBC TV 18 Emerging India Award, Social Impact Award conferred by the former president, Mr. Pranab Mukherjee, amongst others. As a simple man, he is completely devoted to the Indian hand-knotted rug industry with an aim to position it rightly in the world and to empower its real owner and creator, the Indian weaver. His philosophy of totality, inclusion, and for-profit solutions to society are widely discussed. Listen in as he shares significant moments in his life with some amazing life lessons. Hello, Mr. Chaudhary. Such an honor having you on You and I with Rashmi Shetty. It's been so many years since I've been watching you, understanding what exactly you do, but I'd love to know for the amazing work that you do. Where were you as a little boy? Where were these dreams sown to make the beautiful difference that you're making in the world today? Welcome and waiting to hear your journey. Thank you. In my childhood, I was a very innocent child, very straightforward, and so मैंने देखा है कि childhood में generally मैं बहुत साफ बोलता था, सच्चा बोलता था, तो जनरली लोग, परिवार के लोग, समाज के लोग मेरे को पसंद नहीं करते थे, और मुझे जो पसंद आता था, मेरा जो पैशन था, वही काम करने में मुझे बहुत मजा आता था. तो चाइल्डहुड इस तरह का था मेरा. और स्कूल में आप कैसे थे? स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था. आई वॉज ए वेरी डिसिप्लिन चाइल्ड एंड वेरी ओबीडियंट चाइल्ड, और मैं पढ़ाई को खूब अच्छे से किया करता था. कैसी थी आपकी बचपन? मैं चूरू शहर में पैदा हुआ और मेरी सारी पढ़ाई चूरू शहर में ही हुई. प्राइमरी मेरी जो स्कूल थी उसका नाम था सरदार विद्यालय, जहाँ पर मैं 8वीं क्लास तक पढ़ा. 9, 10th एंड 11th मैंने बागला गवर्नमेंट बागला हायर सेकेंडरी स्कूल में किया, और फिर ग्रेजुएशन मैंने अपना चूरू शहर में ही लोहिया कॉलेज में किया. ये मैंने बीकॉम कॉमर्स से. और उसके बाद आपने कहीं पर काम करके अपना करियर शुरू किया? कहाँ पर किया और कैसे आगे हुआ आपकी करियर? मैंने अपना ग्रेजुएशन करने के बाद में अपने करियर की शुरुआत एक दुकान से की,
जो मेरे पिताजी चूरू शहर में चलाते थे। ब्रांडेड शूज की दुकान थी, लेकिन मैंने देखा वहां कोई ज्यादा मेरा आगे बढ़ने का स्कोप नहीं है। और उस दुकान पे काम करते करते मुझे एक सरकारी बैंक में परमानेंट कैशियर की नौकरी भी मिल गई थी। मैंने बैंक को धन्यवाद का पत्र लिखा कि आपने इस लायक समझा, और मैंने नौकरी ज्वाइन नहीं की, क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था। 20s में आपका पैशन आपको कैसे पता चला? देखिए, तब मैंने ये जानने की कोशिश की कि हु एम आई, मैं कौन हूँ। मुझे अपने आप को जानने का, अपने आप को एक्सप्लोर करने का बचपन से ही बड़ा शौक था। और मैंने ये कोशिश की कि मेरी नेचुरल एबिलिटी, कैपेबिलिटीज क्या है। तो मुझे समझ में आया मैं एक पीपल पर्सन हूँ, नेचर में समय गुजारना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। और क्योंकि मैं अपने पैशन को ही अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था, तो ये सोच के फिर मैंने कारपेट का बिजनेस इसीलिए शुरू किया कि मुझे अलग अलग गांव में जाने का मौका मिलेगा, नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा दे वर रिजेक्टेड बाय द सोसाइटी। आप तो अब अर्ली 20s में हो। आपको पता चल गया था कि आप एक पीपल्स पर्सन हो। हाँ और जी। आपका पूरा बचपन जयपुर राजस्थान उसी इलाके में था। तो बिल्कुल। कारपेट इंडस्ट्री और कारपेट्स के बारे में आप क्या जानते थे कि आपने डिसाइड किया कि आप उस तरफ जाओगे? देखिए, मैं कारपेट के बारे में कुछ नहीं जानता था। जैसे मैंने बताया कि मैं अपने पैशन को अपना बिजनेस बनाना चाह रहा था, तो मैंने रिसर्च की कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जो मेरे पैशन के नजदीक हो सकता है। तो उस वक्त इंडियन कारपेट की एक्सपोर्ट में बहुत बड़ी मांग थी, और चूरू शहर में सरकार ने एक ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया था जिसमें वो कारपेट वीवर्स को ट्रेनिंग देते थे। तो जब मैं उस ट्रेनिंग सेंटर को देखने गया, तो मुझे ऐसा समझ में आया कि ये जो वीविंग है उससे मेरा बड़ा लगाव है, और जो वीवर्स हैं उनसे भी मेरा जुड़ाव है। फिर मैंने जयपुर आके इस बिजनेस के बारे में जानकारी की, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरे पेशन को सूट करेगा। तो ये सोच के फिर अपने पिता से 5,000 रुपए का लोन लेकर मैंने इस कारपेट बिजनेस की शुरुआत की। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। आज आज अगर आप देखेंगे, आज तो इंटरनेट है रिसर्च करने के लिए। तो आपका रिसर्च का जो बेस है वो कहाँ से था और आपने कैसे किया वो रिसर्च? देखिए, रिसर्च का बेस ऐसा ही था कि जैसे बहुत सारे दोस्त थे, उनसे मैं पूछा करता था। अखबार भी पढ़ने का शौक था मेरे को। जब मैं शूज की दुकान चलाता था, तो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक थे, तो उनसे मैंने बातचीत की कि इस तरह से मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उन्होंने मुझे आइडिया दिया कि इस वक्त कारपेट की बड़ी अच्छी मांग है, आप इसकी थोड़ी स्टडी कीजिए। तो उनसे मुझे वो आइडिया मिला, और फिर मैंने उस पर थोड़ी रिसर्च की, जयपुर आया, और जहां जहाँ कारपेट का बिजनेस होता था वहां जाके मैंने जानकारी की। तो ये है एक कहानी एक छोटे लड़के का जो हाँ जी। राजस्थान की एक गांव में पला बड़ा है। और हाँ जी। उसको अपने 20s में पता चला कि उसका पैशन है लोगों से मिलना जुलना बात करना, और उसी की बेस में एक बिजनेस स्टार्ट करना है। आपने बात की जिससे भी हो सकता था, और सबने आपको कारपेट की तरफ इशारा किया। गवर्नमेंट ने भी हाँ एक जी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया। आप वहां गए थे और देखा आपने। पर आपको आपके फर्स्ट फ्यू स्टेप्स उस इंस्टीट्यूट में जाने के बाद वो कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला कि आप ये कर सकते हो? और जब आपने अपने पिता से वो 5,000 की लोन ले ली, तो आपने उनसे कहा था कि इतने समय में मैं ये वापस कर दूंगा, अगर ये सक्सेसफुल नहीं होगा तो मैं वापस आपके बिजनेस ज्वाइन करूंगा? देखिए, क्या है कि पिताजी मेरे बारे में अच्छी तरह जानते थे कि जब मैं दुकान पे भी काम काम करता था तो बड़ा डेडिकेशन के साथ काम करता था। और जब मैंने दुकान को ज्वाइन करने के बाद में सेल भी पहले साल ही मेनी टाइम्स बिक्री बढ़ गई थी, तो उनको विश्वास था कि मैं जो भी करूँगा बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही डेडिकेशन के साथ करूंगा। तो उन्होंने कोई विरोध नहीं किया। और जहां तक देखिए प्रॉफिट का सवाल है, कि जब मैंने अपने जो पहले दो दो कारपेट बनाए मैंने, उसी में मुझे इतना प्रॉफिट हुआ कि जो पैसे मैंने पिताजी से लिए थे वो मैंने लोन भी उन्हीं कारपेट से चुका दिया था। वाह। आप जब छोटे थे आपको बहुत सारे फ्रेंड्स थे? आपको लोगों से बात करना अच्छा लगता था? तो स्कूल या कॉलेज में और टीचर्स के साथ आपका बर्ताव कैसा था? देखिए, मोस्टली मेरे जो स्कूल के टीचर थे या कॉलेज में प्रोफेसर
थे। तो काफी अच्छे प्रोफेसर जो मेरी तरह सोचते थे, उनसे मेरे जो एकदम दोस्ती जैसे संबंध थे। और काफी जो स्टूडेंट थे जो मेरी तरह सोचते थे, उनसे भी मेरे बड़े अच्छे दोस्ती थी मतलब। और मुझे याद आता है कि एक तो स्कूल के प्रोफेसर थे जो काफी सीनियर थे, तो वो हमारे मोहल्ले में रहते थे। मैं उनके साथ सुबह घूमने जाया करता था, शाम को भी एक एक दो दो घंटा बैठ के हम लोग बातचीत किया करते थे। तो बोलते थे कि मैं भी मेरा सबसे बड़ा दोस्त आप हो, और मैं उनको बोलता था मेरे सबसे बड़े दोस्त आप हो। आप जब बड़े हो रहे थे, आपके घर में सुख सुविधा थी। ये नहीं हाँ कि आप जी। बहुत गरीब थे कि पैसा आपका मतलब था। तो आपका वो ड्राइव और पैशन कहाँ से आया कि आप बिजनेस में गए, ना कि नौकरी? क्योंकि आपके पिताजी के खुद की एक दुकान थी, तो आपने सोचा होगा कि बिजनेस है। पर आपके दिमाग में खुद का बिजनेस स्टार्ट करने का वो रूट कहाँ से था? देखिए, शुरू से ही मेरा कॉन्फिडेंस था मेरे को कि आई विल नो माई सेल्फ। मैं एक दिन अपने आप को जानूंगा, लेकिन जानूंगा मैं अपने कर्मों के माध्यम से जानूंगा। और कर्म करने के लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपना बिजनेस करूं। बिजनेस में जो गलतियां करूंगा, मैं जो अच्छा काम काम करूंगा, वही एक दिन मेरे को सिखाएंगे कि हु एम आई। इसलिए बचपन से बिजनेस करने का ना मेरे को एकदम क्लियर आइडिया था कि मुझे बिजनेस ही करना है मतलब। तो मन में काफी आत्मविश्वास था उसके लिए। ये जो आत्मविश्वास आप बोल रहे हो, जब आप पहली बार विलेजेस में गए और आर्टिसंस के साथ बात की आपने, कारपेट की बिजनेस में शुरू करने वाला हूँ, तो आपके बात पर उनको कॉन्फिडेंस कैसे आया कि अब खुद के कारपेट आपको दिए और बोले अच्छा ठीक है तो ये लेकर जाइए आप? देखिए, बचपन से ही मैं आपको, जब मैंने इस काम की शुरुआत की, तो जब मैं गांव के अंदर जाता था या घरों में जाता था, तो मैं देखता था कि जैसे मैं एक परिवार में गया, वहाँ के सदस्यों से मैंने बातचीत करने की शुरुआत की, उनको कारपेट के बारे में समझाना शुरू किया, तो मैं देखता था कि आसपास के मोहल्ले वाले लोग भी आ जाया करते थे। और मैं जहां भी जाता था, मैं गांव में देखता था कि काफी गैदरिंग हो जाया करती थी। तो शुरू से लोग मेरे को इतना पसंद करते थे कि ये एक बिजनेसमैन का बेटा है, इतना सिंपल है। तो गांव के लोग बहुत पसंद करते थे मेरे को। अच्छा, तो उनका कॉन्फिडेंस विन करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था आपके लिए? हाँ जी, हाँ जी। और आज मुझे ये समझ में आता है कि वो ऐसा क्या था मेरे अंदर हम्म। कि मैं उनके कॉन्फिडेंस को विन कर पाया। और वो मुझे ये समझ पाए कि मैं कॉन्फिडेंस जैसे करने जैसा हूँ उनके लिए। तो काफी रिसर्च से मुझे ये समझ में आया कि इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ यू लव योर सेल्फ, तो वो आपके अंदर जब होता है तो बाहर से कोई भी आदमी उसको पहचान जाता है। बहुत खूब। तो ये ट्रस्ट योर सेल्फ एंड लव योर सेल्फ क्या कॉन्फिडेंस से आता है या अपने आप पर बहुत काम करना पड़ता है? देखिए, जनरली वी आर ड्रिवन बाय इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। अपने पास सेल्फ स्टीम की जितनी कमी कमी होती है, उतना ही इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा। और जितना इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होगा, आई विल ड्रिवन बाय द फियर कि आई विल नीड द अप्रूवल फ्रॉम द आउटसाइड। तो शुरू से ही मेरे अंदर सेल्फ स्टीम ठीक ठाक रहा था, जिसकी वजह से मुझे बाहर से ज्यादा अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि जब इस धंधे को शुरू किया मैंने, तो परिवार के लोगों ने बोला कि आप जिनसे काम करते हो ये तो अनटचेबल, हम घर में नहीं आने देंगे। मोहल्ले वाले बोले मोहल्ले में नहीं आने देंगे, अछूत लोग हैं। और शुरू सर में किसी पार्टी फंक्शन में जाता था, तो लोग हाथ मिलाने से इनकार कर दिया करते थे कि आप तो अछूत लोगों के साथ काम काम करते हो। तो मुझे समझ में आया एक आदमी की पहचान जाति से कैसे हो सकती है। दे ऑल आर ड्रिवन बाय कंडीशनिंग। एंड इस कंडीशनिंग को आपने चेंज कैसे किया? फर्स्ट अपने अंदर, फिर बाहर की दुनिया में, क्योंकि यू आर ड्रिवन बाय पैशन। आपने कहा था कि पैशन आपको ड्राइव कर रही थी। एंड हमारे समाज में ये अछूत और कास्टिज्म बहुत स्ट्रांग है। आपको जब इतना बड़ा ऑपोजिशन मिला, तो आपने उस ऑपोजिशन को ओवरकम कैसे किया? क्योंकि देखिए, मेरा एक ही क्राइटेरिया था काम का। मैं जो करता हूँ इट शुड बी ड्रिवन बाय पैशन। उसमें मुझे मजा आना चाहिए, उसमें मुझे आनंद आना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं, मुझे काम में इतना मजा आता था कि इस विरोध के बावजूद दोपहर का खाना मैं उन्हीं जो आर्टिस्ट वो वीवर के साथ ही खाया करता था। और मुझे बहुत जल्दी समझ में आया कि आई लव वीवर्स एंड आई लव
वीविंग। तो बस मैं अपने काम में लगा रहता था, और बाहर कोई भी विरोध होता, कोई कुछ बोलता, उस पर मैं ध्यान नहीं दिया करता था। तो लोगों ने फिर धीरे धीरे मेरी तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया, क्योंकि जो मैं करता था उसको एंजॉय करता था, उसमें मुझे मजा आता था। तो बाद मैंने कभी भी विरोध भी नहीं किया, और उन पे ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया मैंने। आई नेवर रिएक्टेड टू दैम। वेरी गुड। ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी लाइफ का जो इम्प्रेशनेबल एज होता है, यूथ होता है, द 20s, एंड उसमें सोसाइटी से हमें अप्रूवल सब कामों में हम सीख करते हैं। सो बिल्कुल जी। उस सीकिंग को जब आप अपने अंदर खोजना शुरू करते हैं, ना कि बाहर, तो राइट। जो डिफरेंस आता है अपने एटीट्यूड और माइंडसेट में, उसका नतीजा है आपका बिजनेस। ये अब शायद आप जब पिछली जिंदगी के बारे में सोचते हो या देखते हो आपके जर्नी, तब पता चलता है। पर एट दैट टाइम आपको ड्राइव सिर्फ पैशन था। आपने किस वीवर के साथ काम करने का, क्या डिजाइन सेल होगा, वो सब आपने कैसे सीखा और उनको कैसे समझाया कि मुझे ये चाहिए, उनसे आपने क्या सीखा? देखिए, शुरू में मैंने जब इस बिजनेस की शुरुआत की थी, आज के 46 साल पहले, आई स्टार्टेड एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर। मैंने 9 साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर किया काम। एक जयपुर के एक्सपोर्टर थे, उनसे मैं जॉब वर्क लेता था, और कारपेट बना के मैं वापस दे दिया करता था। वो मेरे को रॉ मटेरियल सप्लाई किया किया करते थे। तो 9 साल तक एज ए कॉन्ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर काम करने से मुझे जो कारपेट में काम करने वाले लोग, प्रोसेसेस, रॉ मटेरियल, टेक्निकल चीजों की बहुत गहरी समझ आई। और क्योंकि मैं काम बहुत मन लगा के करता था, तो मेरी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती थी। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि मैं अपना खुद का एक्सपोर्ट शुरू करूं। फिर मैं जयपुर आया, 3 साल तक मैं जयपुर में रहा। तो क्योंकि कारपेट बनाने में, क्वालिटी बनाने में मेरा नाम था, तो जो इंडिया में बाइंग एजेंट थे, जो बड़े इंपोर्टर के जो लोग होते थे इंडिया में, तो उनके साथ फिर मैंने अपने एक्सपोर्ट के धंधे की शुरुआत। ओके। और आपको गाइड करने वाला कौन था सर, जो आपको बता रहा था कि आपका नेक्स्ट स्टेप ये होगा? आपने अपना खुद का, हर बिजनेस में एक नेटवर्क चाहिए, कुछ मेंटर्स चाहिए जो हमें सही रास्ता दिखाएंगे। तो उस टाइम में जो आप कर रहे थे, उसी के खिलाफ थे बहुत सारे लोग। तो आपने अपने मेंटर्स को कैसे चुना और अपने अपने नेक्स्ट स्टेप्स को कैसे प्लान किया था, जब आपने वो छोटे छोटे कदम सक्सेस में बदल रहा था? तो आपने अपना खुद का नेक्स्ट स्टेप एक्सपैंड करने के लिए कैसे प्लान किया? देखिए, वैसे तो उस वक्त कोई मेंटरशिप का या इन्वेस्टमेंट की या कोचिंग की, शायद कोई कोचिंग सब जानता भी नहीं था, मैं भी नहीं जानता था। सही बात। लेकिन लकीली क्या हुआ कि एक मेरा एक अंग्रेज दोस्त था, उसका नाम था आइले कॉपर। ही वाज द रिसर्चर ऑन द पेंटेड वॉल्स ऑफ द शेखावाटी। ओह, ओके। तो वो हर साल 4-5 महीने के लिए राजस्थान आते थे, और चूरू शहर में रहते थे वो। और चूरू शहर के आसपास जितने भी राजस्थान के जो पेंटेड हवेली थी, उस पे वो बहुत डीप रिसर्च करते थे। तो जनरली वो शाम का खाना ना मेरे घर पे ही खाया करते थे, उनसे मेरी बहुत गहरी दोस्ती थी। तो जब ये सारा विरोध होता था, मैं अपनी सारी आइडियाज, अपनी चीजें उनको बताया करता था। तो बिकॉज ही हैज गोट ए ग्लोबल एक्सपोजर, तो वो मेरे को बहुत कॉन्फिडेंस दिया करते थे कि हाउ यू शुड ट्रीट योर व्यूअर्स, हाउ यू ट्रीट द सोसाइटी, व्हाट यू आर डूइंग इज राइट, and your society is driven by the conditioning. So you must not take care of the opposition by your family, by your society. So he was a very good guide and mentor for me. हम्म। हम्म। सही बात। आपका जो परख है ये सोचने के लिए कि किसकी बात मैं सीरियसली लूं, किससे मैं एडवाइस लूं, ये तो एक्चुअली आपके चॉइस ऑफ मेंटर्स पर डिपेंड करता है। एंड यू आर वेरी स्मार्ट टू पिक द राइट वन, बिकॉज Right. उनकी ग्लोबल एक्सपोजर की वजह से आपको वो सिर्फ आपके विलेज और आपके स्टेट और आपके जिस स्टेट के बाहर के नेबरिंग स्टेट के बारे में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की आई व्यू क्या है, वो आपको पता चल गया था। तो बिल्कुल जी। आपके ये बिजनेस ग्रो करते करते आपके पर्सनल लाइफ में
कैसे प्रोग्रेस हुआ? देखिए, पर्सनल लाइफ में जैसे जैसे मुझे बिजनेस में तकलीफ आई, शुरू से मुझे इंट्रोस्पेक्शन की काफी अच्छी हैबिट थी। तो जब कोई भी फेलियर आती, कोई भी चैलेंज आता, कोई भी तकलीफ आती, तो मैं बार नहीं देखा करता था कि बार ऐसे कोई गलती हुई जिसकी वजह से ये चैलेंज आया, मैं फेलियर आई। मैं हमेशा अपने अंदर झांक के देखता था कि आई हैव डन समथिंग रॉन्ग विच आई डोंट नो। तो वो व्हाट वेंट रॉन्ग विदन मी, तो वो इंट्रोस्पेक्शन करने से जब मुझे समझ मिलती, तो मुझे एक नई एनर्जी मिलती, एक नई स्ट्रेंथ मिलती। तो आई ऑलवेज वर्कड ऑन ऑन टू इवॉल्व माई सेल्फ ओके। एंड सर्च विदन। दिस एक्चुअली अ वेरी स्पिरिचुअल साइड कि हम अपने अंदर झांकते हैं एंड वी डू दैट सर्च विद इन टू फाइंड आउट हु वी आर, व्हाट एम आई, व्हाट इज ट्रिगरिंग मी। ये सब इज अ वेरी इवॉल्व स्पिरिचुअल स्पेस। सो आपके बचपन में कौन था आपके घर में जो आपके विचारों पर ज्यादा प्रभाव डाल रहे थे, कि आपके थिंकिंग इतना डिफरेंट था? और आपके घर में आपके साथ कौन कौन थे जो आपके थॉट्स को इन्फ्लुएंस कर रहे थे? हाँ जी, ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। और आपने जो ट्रिगर्स की बात की, उस पर भी मैंने पिछले 3 साल में बहुत काम किया, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। देखिए, मेरी फैमिली में और मेरे समाज में ना, देयर वाज नॉट ए सिंगल पर्सन जो मेरी बात को समझा, या जिसने जो मेरे को इंस्पायर करता था। क्योंकि जनरली मैंने देखा है कि बचपन से लेके आज तक मेरी बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता था, क्योंकि उन सब ये बोलते थे यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। मैं शुरू से ही, जब मैं करीब 20-22 साल का था, तब वो ओशो के कैसेट कैसेट मिलते थे, तो मैं ओशो के कैसेट खरीद के उनको सुना करता था। फिर धीरे धीरे उनकी किताबें भी आने लगी थी, तो मैं किताबें पढ़ने लग गया था। तो जब मैं उनकी टॉक को सुनता था, उनकी किताबें पढ़ता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिसको खोज रहा हूँ वो किसी आदमी को मिल चुका है। तो फिर उस दिशा में मैंने और ज्यादा ना खोजना शुरू किया, उनको सुनना ज्यादा शुरू किया, जिससे मुझे एक नई दिशा मिलती थी, नई स्ट्रेंथ मिलती थी। और आज हम जिस लेवल पे हैं, जिस मुकाम पे आज हम लोग हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जयपुर अगी से एक्सपेरिमेंट सेंटर ऑफ द ओशो फाइंडिंग्स। ओशो ने बोला था कि मेरे जाने के बाद में कोई आएंगे जो मेरी टीचिंग को, मेरी जानकारी को साइंस में कन्वर्ट कर देंगे। ओके। तो आज अगर हम देखें तो जयपुर रग्स इज अ कंपनी दैट इज अ वेरी रेस्पेक्टेबल नेम इन द मार्केट एंड इन द इंटरनेशनल मार्केट। जब राइट। आपने शुरू किया था, इट वाज अ स्मॉल यूनिट दैट यू सेट अप, एंड ये प्रोग्रेस भी स्टेप बाय स्टेप जा रहा था। तो आज अगर आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो बहुत सारे मोमेंट्स होंगे जहां आपको आज दिखेगा कि ये टर्निंग पॉइंट था। तो ऐसे आपके सबसे पहला टर्निंग पॉइंट कौन सा था? देखिए, सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था कि जब जयपुर कंपनी को मैंने शुरू किया था, अपने भाई से अलग होके जयपुर कंपनी बिल्कुल जीरो से शुरुआत की, तो मुझे और कॉन्फिडेंस था कि मैं बहुत सफल होऊंगा। क्योंकि कारपेट बनाने में मेरा बहुत नाम हो चुका था। मैं, क्योंकि मैं मोस्टली अपना जीवन गांव में दिया था मैंने वीवर के साथ, तो क्वालिटी में क्वांटिटी में मेरी मास्टरी थी। तो जब जयपुर कंपनी शुरू की अकेले ने, तो मुझे बहुत बड़ी फेलियर आई 3 साल में। तो फिर मैंने सोचना शुरू किया कि व्हाट वेंट रॉन्ग। तो मुझे समझ में आया कि जो एक कारपेट बनाने में मेरा इतना बड़ा जो नाम हो चुका था, तो आई हैव द फॉल्स फीलिंग ऑफ गुडनेस, एंड गुड इज द एनिमी ऑफ बेस्ट। और जब इंटरनेट पे सर्च किया तो पता चला ये एक मानसिक बीमारी होती है जिसका नाम है यूफोरिया। यूफोरिया? यूफोरिया, हाँ। ओके। वो मानसिक बीमारी है? वो मुझे पता नहीं। मैं आपको बताऊं रश्मि, ये मानसिक बीमारी है। इट इज ए फॉल्स इमेज ऑफ माई सेल्फ। हाँ, इंटरेस्ट। तो फिर क्यों मेरा क्यों एक सर? टर्निंग। आई अगर आप माइंड ना करें तो कैन यू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल? व्हाई इज यूफोरिया अ फॉल्स इमेज ऑफ वन सेल्फ? हाँ, हाँ, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल सही और बहुत सच्ची बात आपको बताऊंगा कि देखिए, अभी तक
मैंने अपना पूरा जीवन गांव में गुजारा था, तो मैं गांव के लोगों के साथ बड़ा अच्छा बिहेव करता था, गांव के लोग मेरे को पसंद करते थे, तो आई वॉज वेरी सक्सेसफुल एट द ग्रास रूट लेवल इन द विलेजेस। बट नाउ आई हैव टू रन ए ग्लोबल बिजनेस। तो ग्लोबल बिजनेस रन करने के लिए बहुत सारी स्किल्स मेरे को सीखने पड़ेंगे, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, स्टोरी टेलिंग, फाइनेंस, एचआर, ईआरपी, बहुत सारी चीजें मुझे सीखनी पड़ेगी। और फिर ये था कि मेरी जो गांव में जो लीडरशिप स्टाइल थी, या मेरा जो एक प्रिसेप्शन था, या मेरी जो हैबिट्स थी, उस पर भी मुझे काम काम करना पड़ेगा। आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स, आई हैव टू चेंज माई प्रिसेप्शन टू रन ए ग्लोबल ग्लोबल बिजनेस। तो उसके बाद में मेरी बदलाहट की शुरुआत हुई। पहला जो चेंज किया आपने वो क्या था? फ्रॉम योर करंट स्टेट ऑफ द लोकल बिजनेस टू टेक इट टू द ग्लोबल लेवल, तो फर्स्ट फ्यू चेंजेस दैट यू हैड टू ब्रिंग इन, क्योंकि तब तक आपका एक कैरेक्टर एस्टैब्लिश हुआ होगा, आपका एक बिहेवियर पैटर्न एस्टैब्लिश हुआ होगा, लाइफ को आपको देखने का नजरिया आपने एस्टैब्लिश किया था। तो उसको अनलर्न करके सब कुछ नया सीखना एक चैलेंज है। एंड हाउ डिड यू चेंज दैट माइंडसेट? वो ग्रोथ माइंडसेट कहाँ से आया, और अपने आप को बदलने के लिए आपने क्या क्या किया? देखिए, जो सबसे पहला मुझे जो समझ में आया, मेरी जो आदत थी टू माइक्रो मैनेज, हर चीज को मैं खुद करना चाहता था, और हर जगह में आ जाया करता, हर डिसीजन में, हर एक्शन में मैं आ जाया करता था। तो मुझे ये समझ में आया कि आई एम लाइक ए आइस क्यूब। तो मुझे सक्सेस होना है तो आइस को पिघला के आई हैव टू कन्वर्ट आइस इनटू द वाटर, वाह। एंड आई मस्ट बी फ्लेक्सिबल लाइक द वाटर। और ये मुझे समझ में आया कि केवल मैं ही कर सकता हूँ, इट इज माई ईगो। तो फिर मैंने अपने आप को पानी पानी बनाया, और फिर मेरे सीखने की शुरुआत हुई जब मुझे ये महसूस हुआ। और फिर मैंने ये भी सीखा कि मेरा जो काम है वो है टू गिव द पीपल। मेरे तीन काम हैं एज ए लीडर। द फर्स्ट इज द डायरेक्शन, द सेकंड इज द लव, द थर्ड इज द फ्रीडम। ब्यूटीफुल। तो ये तीनों क्वालिटी कैसे मैं डेवलप करूं, तो सक्सेसफुल लोगों से मिलना शुरू किया। उस वक्त तो कोचेज होते भी नहीं थे, किताबें आपको पढ़ना तो शुरू कोचिंग का एम्बेसडर होना चाहिए। किताबें पढ़ना शुरू किया, फिर कुछ वर्कशॉप सेमिनार होते थे, वहां जाना शुरू किया। फिर धीरे धीरे मुझे ये चीजें समझ में आने आने लग गई। और उससे क्या, और फिर मैंने अपनी इंट्रोस्पेक्शन के द्वारा अपना मतलब सेल्फ अवेयरनेस पे बहुत काम किया, कि मैं जो कर रहा हूँ वो क्यों क्यों कर रहा हूँ, एंड हाउ अवेयर आई एम। इस अवेयरनेस से आपको क्या जवाब मिला? इस अवेयरनेस से ये जवाब मिला कि आई एम द स्लेव्स ऑफ माई हैबिट्स, आई एम द स्लेव ऑफ माई अनकॉन्शियसनेस, बट दैट वाज सो डीप रूटेड। तो समझने में मुझे कई साल लग गए, और फिर उसको रिवर्स करने में उसमें बहुत समय लगा, एंड स्टिल अभी भी मैं उस पे काम कर रहा हूँ, क्योंकि जन्मों जन्मों की इतनी कंडीशनिंग होती है ना, इट इज सो डीपर, या और एवरीबॉडी इज ड्रिवन बाय द कंडीशनिंग। करेक्ट। तो बहुत मुश्किल होता है ये जानना कि मैं कितना कंडीशन हूं, मैं जो कर रहा हूँ वो कितना कंडीशन है। लेकिन पिछले 3-4 साल में काफी मैं इसमें आगे आगे गया, एंड नाउ माय जर्नी इज वेरी वेरी गुड ऑन दिस पाथ। Touchwood, I'm sure it's going to only get better. पर आपको पहला फीडबैक और द फर्स्ट फ्यू फीडबैक्स जो आपको मिला था, वो क्या थे कि आपको पता चला कि यू आर ऑन द राइट पाथ? देखिए, धीरे धीरे जैसे बिजनेस बढ़ता चला गया, मेरे 5 बच्चे जो अमेरिका में पढ़ रहे थे वो इंडिया आए, आके मेरे को ज्वाइन करने लगा, तो बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ने लगा। तो मुझे भी काम काम में बहुत अच्छा लग रहा था, ग्रोथ देख के। लोग इतना मजे से काम कर रहे थे, जो आर्टिजन की जिंदगी में बहुत बदलाव आता जा रहा था। तो एक तरह से आप फीडबैक मान लीजिए, या एक तरह से आप बोल दीजिए जो रिकग्नाइजेशन मिली मेरे को। एक दिन मैं अपने ऑफिस में बैठा था, तो मेरे पास फोन आया, उन्होंने बोला आई एम सीके पलाद। सीके पलाद उस वक्त नंबर 1 ग्लोबल मैनेजमेंट गुरु थे। हाँ। मैंने मैंने सोचा इतना बड़ा आदमी मेरे को क्यों फोन कर रहा है, शायद रॉन्ग नंबर डायल किया होगा।
फिर वो बोले आर यू मिस्टर चौधरी, तो मैं बड़ा सावधान हो गया। मैंने कहा नाम कैसे जानते हैं? फिर बोले मिस्टर चौधरी आई वांट टू डू ए केस स्टडी ऑन योर बिजनेस मॉडल। हाँ। तो मैंने बोला सीके वी आर वेरी सिंपल पीपल, इस सिंपल केस स्टडी को पढ़ेगा कौन? फिर उन्होंने बोला योर ग्लोबल सप्लाई चेन इज कनेक्टिंग द पूरेस्ट ऑफ द पूरेस्ट विथ रिचेस्ट ऑफ रिचेस्ट बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटी एट द ग्रास रूट। फिर उन्होंने 41 पेज की जयपुर की केस स्टडी की जो उनकी किताब में है। उसके बाद में मुझे ये समझ में आया कि आई एम ऑन द राइट पाथ, वी आर डूइंग समथिंग राइट एट द ग्लोबल लेवल। सर, आपको एक दो कदम पीछे लेना चाहती हूँ मैं। अगर आप वो फर्स्ट फ्यू इंटरैक्शंस उनसे, जो वीवर्स थे, उनसे आपने जो किया था याद है? और उनसे जब आपने कहा कि मैं आपके कार्पेट्स को बाहर ले जाने वाला हूँ, उस समय तो शायद विद इन इंडिया ही होगा, पर ग्लोबल नहीं सोच रहे थे, तो मैं यहाँ से लेकर उसको बेचूंगा और उसका थोड़ा कमीशन खुद के लिए रखूंगा और आपको पैसे दूंगा। ये जो सिंपल मॉडल आपने उनको बताया, फिर आपने जब ज्यादा आपके ऑर्डर्स आने लगे तो ज्यादा वीवर्स आपने अपनी कम्युनिटी के अंदर डालना शुरू किया, आपके टीम के अंदर। उनके बीच में, उनके बीचों बीच बहुत सारे कंपटीशन होता होगा, लड़ाई होता होगा, उनका कुछ अनरेस्ट होता होगा। उनको आपने कैसे मैनेज किया टू ग्रो लाइक दिस, बिकॉज यू नीड देयर राइट। कंप्लीट ट्रस्ट एंड फेथ ना। देखिए जब से मैंने इस धंधे को शुरू किया, तो शुरू में जब हम आज भी किसी नए विलेज में जाते हैं, हम्म। शुरू में जो लोग आपको मिलते हैं, जो आपसे बात करते हैं, आपको प्रॉमिस करते हैं हम आपके साथ हाँ, काम हाँ, करते हैं, हाँ। तो हमें ये मालूम मालूम रहता है कि इसमें अब 90% लोग ऐसे हैं जो टॉक्सिक है, जो काम नहीं करना चाहते, जो निगेटिविटी फैलाएंगे, करेक्ट। बिना काम के पैसे हम पैसे मांगेंगे। करेक्ट। तो अब हमने एक ऐसा फिल्ट्रेशन सिस्टम डिजाइन किया हम्म। कि ऐसे वीवर दे बिलीव व्हाट वी बिलीव, हमारी जो वैल्यूज है, फिलोसफी है, हम्म। जो विजन है, उसमें बिलीव करने वाले ओ। जो व्यूवर है, हम्म। अल्टीमेटली उन्हीं को हम लोग रखते हैं। हम्म। बाकी लोग धीरे धीरे फिल्टर होते जाते हैं। तभी ओ। जाके आज हमारे जो व्यूवर्स हैं पूरे इंडिया में, वो एक दे आर लाइक द फैमिली। ओके, एंड एक और प्रॉब्लम है इन द स्ट्राटा कि ड्रिंकिंग, तो अल्कोहल जो उनको अपने वश में करता है। देर आर लॉट ऑफ पीपल हु सकम टू दैट एज वेल एज अ हैबिट। तो उनको आपने वही फिल्ट्रेशन सिस्टम यूज किया था, क्योंकि दैट्स देयर पर्सनल लाइफ। आपको उनसे कारपेट चाहिए, और उस टाइम के अंदर अगर वो कारपेट दे दे तो हो गया। तो उनके लाइफस्टाइल्स में, उनके जीने का ढंग में आपने कुछ बदलने की सोचा, या कुछ किया, या कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट था आपके अंदर? नहीं, हमने उनको बदलने के लिए सोचा तो नहीं, लेकिन मतलब मेरा जो अच्छे व्यवहार, अच्छे काम की वजह से उनमें जो फर्क आया, उसकी कुछ मैं कहानियां जरूर आपको बताना चाहूंगा। हम्म। कि जब गुजरात में मैंने इस काम को शुरू किया था, तो पूरा ट्राइबल बेल्ट था। हम्म। मतलब 15 से 20% लोग तो कपड़े भी नहीं पहनते थे। हम्म। और गांव के अंदर लोग, बहुत सारे लोग दारू पीते थे, बदमाशी करते थे, लोगों को लूट लूट लिया करते थे। जब मैंने शुरुआत की वहां पर, तो मेरे को भी बीच में जो दारू वगैरह पीते थे वो लोग रोक लिया करते थे। तो मैं क्या किया करता था कि बैठ के उनसे बात किया किया करता था। आई बिहेव लाइक ए ह्यूमन ह्यूमन बीइंग। तो मैं उनको बड़ी इज्जत दिया करता था, उनकी बात सुना करता था। तो धीरे धीरे इस तरह के जो पीने वाले लोग थे, जो बदमाश थे उस एरिया के, वो धीरे धीरे मेरे दोस्त के रूप में कन्वर्ट होने लग गए। और काम में क्या है कि आदमी काम नहीं करते थे, ज्यादातर औरतें काम काम करती थी। हाँ। तो जब उनकी औरतें काम करती थी, इतना पैसा कमाती थी, तो उनका रिस्पेक्ट लेवल भी मेरे लिए बढ़ गया। तो धीरे धीरे गुजरात में ही होता था कि 2 या 3 साल बाद जब मैं उस एरिया में जाता था, तो उनके घर वाले उनको कमरे में बंद कर दिया करते थे कि आज चौधरी साहब आएंगे तो ये उनका टाइम वेस्ट नहीं करें। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जो वुमेन थी उनके हाथ में जब इनकम इनकम गई, तो आदमी जो उनकी पिटाई करते थे, उनको जो गलत ट्रीट करते थे,
उसमें बहुत बड़ा चेंजेज आया। और उनको भी एक शर्म आई कि मेरी औरत का देखो आज कितना एक ग्लोबल लेवल पे ना पहचान बढ़ती जा रही है। तो ये उनके माइंडसेट में जरूर बहुत ज्यादा आया फर्क। ट्रू, ट्रू, सुनते ही इतना अच्छा लग रहा है। और अगर आपने वो एक्सपीरियंस किया होगा तो इट मस्ट हैव बीन सो स्पेशल। तो वीविंग कम्युनिटी को छोड़कर कुछ और लोग होते हैं ऑन द एक्सटर्नल फ्रिंजेस सोसाइटी में, जो ए टाइप की डिस्टर्ब्ड पीपल होते हैं कि प्रोग्रेस जहां पर हो बस आकर उसको अपोज करना है, क्योंकि ये तो अछूत है, ये डाउन ट्रॉडन कम्युनिटी है, ये ऊपर आ रहे हैं, हमसे ज्यादा कमा रहे हैं, उनकी अब कंडीशनिंग बहुत अच्छा हो रहा है, सोशल लाइफ अच्छा है, फिनेंशियली दे आर बेटर ऑफ। तो उनसे भी ऑपोजिशन आपको निपटना होता होगा। तो आपने ये सारे जो प्रोटेस्ट और आपको नीचे लाने वाले ऑपोजिशन को आपने हाँ जी। कैसे डील किया? नहीं देखिए, हर हर विलेज में जहाँ हमने काम काम किया तो वहाँ के बहुत सारे सरपंच या इस तरह के जो लोग थे जो बहुत चालाक तरह के लोग थे, तो वो कोशिश किया करते थे कि हम उनको पैसा देवें। तो वो धमकी देते थे कि हम आपका काम बंद करवा देंगे, आपको ये तकलीफ करेंगे, ये करेंगे। लेकिन मैं कभी भी एक तो उनका विरोध नहीं करता था। और एक जितने भी जो व्यूवर थे उनसे मेरा इतना ज्यादा जुड़ाव, इतना लगाव था कि मैं और हमारे सारे लोग वहीं तक फोकस रहते थे। हम्म। कभी काम के दूसरे लोगों से दोस्ती करना या दुश्मनी करना, उनसे बिल्कुल भी टच नहीं रखते थे। हम्म। तो हम ये देखते थे कि धीरे धीरे वो कोशिश करते कि हम उनको पैसे देवें, उनका विरोध भी नहीं करते थे, उनकी तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, तो वो धीरे धीरे शांत होते जाते थे। क्योंकि उनको उनको भी मालूम था कि लोगों का जो पावर है दैट इज विथ अस। तो कभी भी हमें, कभी भी आज तक 46 ईयर में बहुत सारे लोगों ने तकलीफ करने की कोशिश की, लेकिन कोई तकलीफ आज तक कर नहीं पाया। हम्म। हमें हमने बहुत पेशेंस भी रखा। सो 36 years इज अ लॉन्ग जर्नी। तो जयपुर रग्स आपने 36 years पहले शुरू किया था, उससे पहले आप 10 साल मैन्युफैक्चरिंग कॉन्ट्रैक्ट थे। तो अगर आप ये पूरे जर्नी को एक बार पीछे मुड़कर देखेंगे तो कुछ ऐसा मोमेंट्स है उस जर्नी में जहां आपके मन में वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स आप लिख सकते हो? ऐसे कुछ स्टोरीज हैं कि एवरी टर्न में ये हो रहा था? आज देखिए, इस तरह की बहुत सारी स्टोरीज हैं और मोस्टली स्टोरीज इसी तरह की है मेरे जीवन में। एक बार मैं एक विलेज में गया था। उस गांव के उनके गांव के जो सरपंच थे उसमें हमारी 4 रूमें चलती थी। तो मैं सारे व्यूवरों से बात बात कर रहा था जो वो कारपेट बना रहे थे। फिर मैंने देखा कि मैं बात में इतना मस्त था कि आधे घंटे बाद मैंने देखा कि मेरे पीछे कम से कम 60-70 लोग उस घर पे आ गए। मैंने सोचा आज ये क्या हुआ। एक बार तो मैं डरा भी, मैंने कहा इतने सारे लोग क्यों इकट्ठे हो गए। फिर मैंने वो सरपंच से उनको पूछा कि ये लोग क्यों आए हैं। बोला मैंने इन सबको बुलाया। मैंने कहा क्या बात हो गई। तो उन्होंने बोला, सारे गांव वालों को, कि देखो ये इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हैं और हमारे घर आके इस तरह एक छोटे से पत्थर पे बैठ के बात कर रहे हैं, और आप गांव के लोग हो, वो भी यहाँ बैठने में शर्म महसूस महसूस करते हो। तो हम्म। बोला ये मैं आप गांव के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरह की घटनाएं बहुत याद है मेरे को, और यही मुझे स्ट्रेंथ भी देती थी कि लोग कितना, मतलब जो प्रेम मिला मेरे को गांव के लोगों से, दैट इज वंडरफुल। दैट इज ट्रू, दैट्स वेरी ट्रू। और कुछ अवार्ड्स या रिकग्निशन सर आपको मिला था हाँ जिसको जी। आप देखकर बहुत खुश हो रहे हैं कि आपकी जर्नी इतना मीनिंगफुल रहा? आई वुडंट लाइक टू कॉल इट जस्ट सक्सेसफुल, बहुत मीनिंगफुल था। हाँ जी, देखिए करीब अभी तक मेरे को 100 से ज्यादा अवार्ड मिल गए और अभी भी मिलते ही जा रहे हैं। जब अर्नस्ट एंड यंग का जो अवार्ड होता है, एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड, तो उसमें शॉर्ट लिस्टेड हुआ था। तो मैं दिल्ली गया, होटल में वो सब वो अवार्ड फंक्शन चल रहा था। तो मेरे को शॉर्ट लिस्टेड का जो जितने भी कंपनियां थी उनको वो अवार्ड मिला। तो अवार्ड लेके मैं बैठ गया उसमें। मुझे ये था कि इतने बड़े बड़े लोग थे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वहां पर। मैंने कहा अब तो अपने को यहाँ कोई नंबर आना नहीं है अपना। तो मैं आराम से बैठ के एक सोने जैसी अवस्था में चला गया।
हाँ। फिर जब पहला अवार्ड घोषित किया, मेरे को ऐसे ऐसे, मैं थोड़ा नींद में था तो मुझे सुनाई दिया जयपुर रग, ऐसा कुछ बोल रहे थे। फिर बोला NK चौधरी, तो मैं जोर से खड़ा होकर नींद में चलने लग गया। तो लोगों ने मेरे को रोका कि आप रुकिए, अभी आपका नंबर आने वाला है। आई वॉज सो एक्साइटेड कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना एंटरप्रेन्योरशिप का अवार्ड एक दिन मेरे को ना ये ग्लोबल लेवल का मिलेगा। लाइफ में सर किसी को अगर, हर एक के पास ड्रीम्स होता है, और आजकल सक्सेस मतलब पैसा, पर जेन्युइन सक्सेस जब हम देखते हैं, और बहुत सारे ठहराव उसमें होना चाहिए सक्सेस में, तो आपके हिसाब से अगर सक्सेस का कोई डेफिनेशन हो तो वो क्या होगा? सक्सेस का जो सबसे बड़ा डेफिनेशन मैंने जो अपने जीवन में जाना, वो है कि जब एक एंटरप्रेन्योर पेशेंस से एक बिजनेस को शुरू करता है, लेकिन वो सक्सेस इतना जल्दी होना चाहता है कि उसके पेशन में एम्बिशन आ जाता है कि उसको बहुत जल्दी सक्सेस होना है, बहुत जल्दी सब कुछ चाहिए, नाम भी चाहिए, इज्जत भी चाहिए, सब कुछ चाहिए उसको, और बहुत जल्दी जल्दी चाहिए। तो जो पेशन पेशन के साथ जब एम्बिशन आ जाती है, इट करप्ट द पेशन। हाँ, करेक्ट। तो सक्सेस का राज यही है कि वो अपने पेशन के हिसाब से चले, उसमें स्लो चले, स्टेडी चले, और पेशेंस रखे, उसमें ठहरे, वो रुके वो। तो जब वो रुकता है वो आदमी, और अपने पेशन में ही वो काम करता है, तो इट कन्वर्ट इनटू द कंपेशन। And when your passion convert into the compassion, you become the unique in the global. Oh, this is beautiful. Okay, so when passion gets converted to compassion through patience, that's when you become unique. बहुत बढ़िया स्टेटमेंट है सर। एंड ये पैशन और कंपैशन हम सब में, कोविड का जो टाइम आया था, उस टाइम में सबको ये बहुत बड़ा चैलेंज था। जिसके पास पैशन था उसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं था, सब बंद हो गया था। कंपैशन तो हम हर एक में अपने आप उत्पन्न होने लगा, क्योंकि फर्स्ट अपने ऊपर पर सेल्फ कंपैशन, और जो भी हमारे आसपास थे सबके ऊपर में, क्योंकि हमें पता चला कि इफ माय नेबर इज फाइन आई एम फाइन। And that is the biggest lesson that COVID taught us, that we are all Right. connected. तो आपके हिसाब से आपका रिफ्लेक्शंस कोविड में क्या था? क्योंकि जो वीविंग है, इट्स अ इट्स अ प्रोफेशन वेयर यू हैव टू मीट द पर्सन, इंटरेक्शन रखना चाहिए, यू हैव टू टेक द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट जाना चाहिए, और ग्लोबली सब बंद हो गया था। तो व्हाट वर योर रिफ्लेक्शंस ड्यूरिंग कोविड? देखिए, मैं आपको दो रिफ्लेक्शन बताऊंगा कि एक तो मेरी पर्सनल जर्नी, कि जब सब कुछ रुक गया और बाहर जाना बिल्कुल बंद हो गया, तो पहली बार मुझे समझ में आया कि ये जो रियल जो जर्नी है आदमी की, वो इनवर्ड जर्नी है। ये बाहर की जर्नी की जो भाग दौड़, इतना तेजी से भागना, अनस्टॉपेबल होना, यही आज ये धरती को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो मुझे तो मेरी एक इनवर्ड जर्नी की शुरुआत हुई, और उसको मैं फिर उसके बाद बड़ी डीपर डीपर लेवल पे ले गया। तो ये तो मेरा पर्सनल हुआ। दूसरा, बिजनेस में हमारे जितने भी जो आर्टिजन थे, वो उनका गांव से बाहर आना जाना बंद हो गया। बाहर जो लोग गए थे वो घर पे आ गए। तुम्हारा 40% प्रोडक्शन बढ़ गया। तो इतना प्रोडक्शन बढ़ा, और उधर जो कस्टमर थे वो भी घरों में बैठे थे दुनिया में। तो उन्होंने अपने घरों को सजाना शुरू किया। तो उन्होंने कारपेट खरीदना शुरू कर दिया। तो अभी ये समझ में आया कि 46 साल पहले हमने ये जो मॉडल शुरू किया, वर्क फ्रॉम होम और सोशल डिस्टेंसिंग, दैट वाज द राइट थिंग। एंड ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ को देखने के लिए। और आई थिंक फेलियर, या फेलियर नहीं कहूंगी, जब हमारे हिसाब से जीवन नहीं चल रहा है, तो इफ यू हैव ह्यूमर, अपने आप यू आर एबल टू ओवरकम दैट ऑब्स्टिकल। तो राइट जी। सोशल डिस्टेंसिंग डेफिनेटली हेल्प। और आजकल के नौजवान जो इंस्टेंट वैलिडेशन, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन में बिलीव करते हैं, और जिस 10 मिनट 10 सेकंड का अटेंशन स्पैन रखते हैं। अटेंशन स्पैन, हाँ जी, हाँ हाँ, जी। तो आप शॉर्ट्स या रील्स में देख सकते हो। तो अगर वो आपसे सुनना चाहते हैं कि
सक्सेस या टू मेक अ डिफरेंस इन समबडी, बिकॉज हमारे इस पॉडकास्ट का नाम है यू एंड आई विद रश्मि शेट्टी, जिसमें यू एंड आई स्टैंड्स फॉर यूनिकनेस एंड इंडिविजुअलिटी। हर एक आदमी में एक यूनिकनेस है, पर राइट जी, वो वी रिकग्नाइज ओनली व्हेन वी गो इनवर्ड्स टू आइडेंटिफाई व्हाट इज बिल्कुल यूनिक बिल्कुल। अबाउट अस। एंड उस यूनिकनेस को शाइन करने के लिए हमारी जो इंडिविजुअलिटी है उसको हमें बाहर लाना होगा, जो हमारा बिल्कुल स्टाइल है। तो आपने बहुत अच्छी तरह एंड बहुत साल पहले ही, जस्ट एट द बिगिनिंग ऑफ योर जर्नी, अपने आप को परखा और आगे उसी जर्नी में चलते रहे। और राइट। बेस्ट पार्ट इज, आज तक इतने सक्सेस मिलने के बाद भी, जयपुर रग्स एक इंटरनेशनल ग्लोबल नेम होने के बाद भी, यू आर सो ग्राउंडेड एंड यू आर लुकिंग एट एवरीथिंग विद ह्यूमर। तो जो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी जर्नी, एंटरप्रेन्योरियल जर्नी, उनको अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको आप क्या कहना चाहते हो सर? देखिए, मैं अपने लाइफ के 3 लेसन्स उनको बताना चाहूंगा। तो पहला लेसन है कि लव योर सेल्फ एंड लव व्हाट एवर यू डू एंड लव योर पीपल। दिस इज द फर्स्ट लेसन। सेकेंड लेसन ये है कि फाइंड योर पैशन। आप जो है वो आप जो है आपको वैसा ही रहना है, और आपका जो पैशन है उसी को अपना बिजनेस और अपना काम काम बनाना है। और तीसरा बताऊंगा कि मैं एक्सपेंड योर कॉन्शियसनेस बाय इंट्रोस्पेक्शन एंड सेल्फ अवेयरनेस। कॉन्शियसनेस पे लगातार काम करते रहिए कि मैं जो कर रहा हूँ व्हाई आई एम डूइंग इट। वेरी वेरी डीप, वेरी ब्यूटीफुल। क्योंकि ये व्हाई एम आई डूइंग व्हाट आई एम डूइंग बहुत ही डीप सवाल है, एंड उसका एक आंसर नहीं होगा। उसको अगर डिसेक्ट करते रहोगे तो आपको क्या मिलता है सर? व्हेन यू से व्हाई एम आई डूइंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि चौधरी सर व्हाई आर यू डूइंग व्हाट यू आर डूइंग, उससे आपको क्या मिलता है? देखिए, इससे मेरे को ये मिलता है कि मेरी जो कंडीशनिंग है, क्योंकि मैं जो करता हूँ वो मैं थोड़ी करता हूँ, मेरी कंडीशनिंग करवाती है। आई एम नॉट मेकिंग द डिसीजन बिकॉज आई डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, आई सी द वर्ल्ड एज आई एम। तो मेरी आंख के सामने जो लगा हुआ है वो पर्दा धीरे धीरे कम होता जाएगा, और एक प्याज के छिलके की तरह ना वो पर्दे में डीपर एंड डीपर जाता जाऊंगा, तो मुझे फिर धीरे धीरे मुझे अपने बारे में समझ आएगी। और एक दिन ये समझ में आएगा मेरे को कि मैंने इतना जो किया लोगों को दिखाने के लिए किया, अपने ईगो के लिए किया, अपने एम्बिशन के लिए किया, जिसकी मुझे जरूरत भी नहीं थी। सो ट्रू, सो ट्रू। इतनी खूबसूरत बात आपने कही सर, एंड थ्रू आउट दिस कॉन्वर्सेशन बहुत बढ़िया बढ़िया लाइफ लेसन्स आपने दी। अगर आपके लाइफ को एक सेंटेंस में कैद करना हो, या आपकी टैगलाइन हो, आपके ब्रांड जयपुर रग्स के अलावा एनके चौधरी का ब्रांड की एक टैगलाइन हो, तो वो क्या होगा? फाइंडिंग योर सेल्फ थ्रू लूजिंग योर सेल्फ। The गॉड, more I lose myself, the more I find myself. true, true, true. And losing yourself to make a difference to other people around you, Yes, the most definitely. beautiful way to find yourself. Sir, God bless you. बहुत बढ़िया था ये कॉन्वर्सेशन, एंड आई एम कंप्लीटली ऑनर्ड कि आपने एग्री किया इस कॉन्वर्सेशन के लिए और अपने आप को खुलकर मेरे सब सवालों का जवाब दिया। थैंक यू सो मच सर, गॉड ब्लेस यू, कंटिन्यू टू इंस्पायर, एंड आप जैसे लोग और भी हो, बिकॉज आई थिंक दैट्स व्हाट वी नीड टू मेक द सोसाइटी अ ब्यूटिफुल प्लेस। सो थैंक यू वेरी Thank you, मच। ji. Thank you, thank you, ji. With that, we complete this episode of You and I with Rashmi Shetty. Do let us know if you know inspirational people whose story needs to be heard. You can write in at rashmi.thethirdeye@gmail.com. That is rashmi.thethirde@gmail.com.